गाइस गुड मॉर्निंग बोलते क्या? ये बाकी तुम सब लोग सो रहे क्या? गुड मॉर्निंग। हाँ शाबाश। ये सबसे लुच्चा लड़का है, पता है ये क्या करता है? नहीं, ये पीछे वाला कृष्णा जोर से सारी चीजें बोलता है, उसकी तरफ देखो एकदम चुप हो जाता है, जैसे गुड मॉर्निंग सब चुप, एकदम चुप। ओके, विल स्टार्ट विद एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इफ the quantity demanded, सुनना, if the quantity demanded changes because of change in price, if the quantity demanded changes, मालू जी, if the quantity demanded changes because of change in price of a commodity, then it will be referred as either expansion or contraction. So if the price of the particular commodity falls and the quantity demanded increases, this will be referred as expansion in demand. If the price of the commodity rises and the quantity demanded falls, then this will be referred as contraction in demand. In expansion and contraction, the demand will move along the same demand curve. यहां पर एक ही डिमांड कर्व बनेगा, प्राइस के चेंज होने के कारण या तो एक्सपांशन होगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोमेंट, या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा अपवर्ड मोमेंट. सो द की पॉइंट हियर इज डिमांड इज चेंजिंग बट बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, कोई दूसरे फैक्टर्स के कारण नहीं. वी नो दैट द डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर, but if demand is getting affected because of price, then it will be called as either expansion or contraction. समझा क्या ऐश्वर्या? समझा? अच्छा, प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगी. और इसको अपन टेक्निकली क्या बोलेंगे? एक्सपांशन इन डिमांड, नॉट इंक्रीज इन डिमांड, इट इज एक्सपांशन इन डिमांड. अगर कमोडिटी का प्राइस गिर जाता, सॉरी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर होगा? कम हो जाएगी. सो दिस विल बी रेफर्ड एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. द डिमांड will move along the same demand curve. Here you can see there is only one demand curve. If I present this graphically, x-axis is representing the quantity demanded while y-axis represent the price. यहां पर P वाला दिख रहा है तुमको, PM. So at the price POP, OM was the quantity demanded. When the price decreased to P dash, क्वांटिटी डिमांडेड हो गया ज्यादा ON. सो शिफ्ट हुआ है डाउनवर्ड शिफ्ट, मोमेंट अलोंग द कर्व, सॉरी शिफ्ट नहीं हुआ है, डाउनवर्ड मोमेंट अलोंग द कर्व हुआ है. समझ रहा है तुमको? माधवी समझ रहा है? देयर इज अ डाउनवर्ड मोमेंट अलोंग द कर्व. नाउ इफ द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम P to P dash, द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी OL, इतना. सो देयर इज अ अपवर्ड मोमेंट अलोंग द कर्व. अर्लियर the quantity was determined here, quantity demanded was determined here. अगर price increase हो जाता है and it becomes P dash, quantity demanded will be this. This is the upward moment along the curve, and this is contraction in demand, not expansion. This is contraction in demand. If P is the, sorry, OP is the price, OP was the price and OP dash is the new price. OP dash ये वाला part. Now the quantity demanded at this level will be ON, this point. This is also again the same moment along the same demand curve, and this will be referred as expansion. So downward moment along the same demand curve will be referred as expansion, while the upward moment along the same demand curve will be referred as contraction. Contraction and expansion takes place because of change in quantity demanded, because of price of the commodity, change in price of that particular commodity, keeping other factors constant. जितना क्या? समझा क्या? ज्यादा इंग्लिश हो गई, हिंदी में आओ. हिंदी में आते हैं. अगर कमोडिटी का प्राइस चेंज होने के कारण, उसी कमोडिटी का, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हार्ड डिस्क, अगर इसी का प्राइस चेंज होने के कारण इसकी डिमांड बढ़ जाती है, दिस विल बी रेफर्ड एज एक्सपांशन. एक्सपांशन इज डाउनवर्ड मोमेंट अलोंग द कर्व. सोनाली, अगर यही कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, देन द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस. सो दिस विल बी अपवर्ड मोमेंट अलोंग द कर्व, कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन. The thing to be kept in mind is expansion और contraction क्यों होता है? Because of change in price of that particular commodity only.
और कोई दूसरे फैक्टर का प्राइस या क्वांटिटी, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री चेंज होता है और उसके कारण अगर तुम्हारी डिमांड अफेक्ट होती है, दैट इज नॉट एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज. दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू कवर. यहां पे देखो इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड लेटर, बाद में. एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन आप समझा क्या निखिल? समझा? नमन क्या समझा? नमन क्या समझा? नमन के बाद मुझको बताएगा ये, फिर सुमित, फिर वैष्णवी, वैष्णवी बताएंगी, फिर मुझे गौरी बताएगी, फिर मुझे पायल बताएगी, फिर तुम बताओगे नाम, अमृता कोहली बताएगी मुझे, फिर उसके बाद फाइनली अमृता बता देगी दूसरी वाली. कौन था? ये पेन और ये माउस लेट से कॉम्प्लीमेंट्री है, सडनली इसका प्राइस कम हो गया और इसकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से. एक्सपांशन है कॉन्ट्रैक्शन है? सेम गुड होना चाहिए, करेक्ट. हाँ कौन था? नमन. प्राइस में चेंज नहीं है, एग्जैक्ट बता. प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज? प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड नहीं, प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ेगी ना राजा. कंफ्यूज हो गया होगा. हाँ, तेरी शर्ट और तेरी पैंट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, सडनली ट्राउजर्स पैंट की प्राइस कम हो गई, उसके कारण तू ज्यादा शर्ट खरीदने लग गया क्योंकि वहां पैसे बच रहे पैंट में, तो तूने ज्यादा शर्ट में डालना चालू कर दिया. एक्सपांशन है कॉन्ट्रैक्शन है? ट्राउजर की प्राइस चेंज हो जाने के कारण तेरी शर्ट की डिमांड पे अफेक्ट हो गया. एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन? हाँ कुछ नहीं है. अमृता कोहली वो बोल रहा कुछ नहीं है. एग्जैक्टली करेक्ट. सर आपने जो एग्जांपल दिया ना उसमें वही पर्टिकुलर गुड्स के बारे में बात नहीं करी, आपने दूसरे गुड्स के बारे में बात करी. सो दिस इज नॉट एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये सर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है. ठीक है, मतलब ये चीज सबको समझ में आई. The next point to be kept in mind is it is the movement along the curve, while increase or decrease in demand is shift of the demand curve. नया डिमांड कर्व आ जाता है, लेकिन अगर प्राइस के कारण तुम्हारी डिमांड चेंज हो रही है तो उसको बोलेंगे मूवमेंट अलोंग द कर्व. प्रियंका समझा? देयर विल बी अ मूवमेंट अलोंग द कर्व. अगर प्राइस के कारण डिमांड अफेक्ट हो रही है तो एक ही डिमांड कर्व रहेगा और उसी के अलोंग मूवमेंट रहेगा ऊपर नीचे. ठीक है, अगर एनी अदर फैक्टर, बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर डिमांड इज गेटिंग अफेक्टेड, देन देयर विल बी अ न्यू डिमांड कर्व, देयर विल बी अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व. ये आगे दिखेगा अपने को. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल तो मैं नहीं बताने वाला हूं, ये टेबल पढ़ लो तुम, देखो समझ में आ रहा क्या. ऊपर एक्सप्लेनेशन मैं नहीं पढ़ रहा, वो मैंने बता दिया है. क्या हुआ सोनाली? पढ़ लो, पढ़ो. क्या हंसते रहते तुम लोग जिंदगी में, मतलब सच में वो टीचर बचपन में बोलते थे ना, ऐसा क्या जोक है हमको भी सुनाओ. आज मेरे अंदर भी इच्छा आती है, बताओ क्या जोक है, हंसी आती रहती है तुमको. कल से मानसी और सोनाली अलग अलग बैठेंगे, अलग अलग. हाँ क्या? हाँ मतलब क्या, 1 घंटे भी अलग नहीं बैठा जाता, अलग बैठना पड़ेगा. हंसते रहते तुम, यू डिस्ट्रैक्ट मी अलॉट. प्रियंका अलग बैठना है इसको भी. कल से प्रियंका और मानसी बैठेंगे साथ में, और वैभवी और सोनाली साथ में. नहीं, सोनाली डेंजर है. सोनाली के साथ सबसे शांत अमृता को बिठाएंगे. अमृता को चुप करो तुम. अमृता के साथ. और अमृता तुम्हारी वो कहां गई, अर्पिता कहां है? वो अर्पिता यहाँ पे, तुम वहां पे. तुम दोनों को भी अलग करता हूं मैं. अभी उसकी तरफ देखेगी वो. बाकी लोग पढ़ो, चलो पढ़ो. मैं बोर होता हूं तो मैं बात करता हूं सबसे. लुच्ची बुक में ध्यान, चल. झाला?
पढ़ लिया प्रजय? ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. इफ द डिमांड इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन एनी अदर फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस को छोड़ के बाकी कोई फैक्टर के कारण अगर तुम्हारी डिमांड चेंज हो रही है, इट विल बी रेफर्ड एज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड. समझा क्या? याद ना, बिजली का बिल नहीं भरा हमने, फीस नहीं भरी ना तुम लोगों ने, कहां से आएगा पैसा हमारे पास? पूजा में इसलिए बार बार आती है, फीस भरो ताकि लाइट भरेंगे, लाइट का बिल भरेंगे. अरे पैसे नहीं है, क्या करें? कभी कभी बस स्टैंड पे रात गुजारनी पड़ती है. कभी कभी नमन के साथ मेरे को ठर्रा पी के जन्नत में सोना पड़ता है. हम दोनों वही गटर में पड़ जाते हैं दोनों. नमन इज प्रो, वो 2 पैक लगाने के बाद ही आउट होता है. मैं 1000 ऐसा पी लेता हूं, मैं आउट हो जाता हूं. नमन ने एक्सपर्टीज हासिल कर ली उसके अंदर. कोई बात नहीं. इफ डिमांड इज गेटिंग अफेक्टेड, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेट्स से डिमांड इज गेटिंग अफेक्टेड, डिमांड चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, यानी कि उस कमोडिटी के प्राइस को छोड़ के बाकी कोई फैक्टर के कारण अगर डिमांड तुम्हारी अफेक्ट हो रही है, इट विल बी रेफर्ड एज इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड. फॉर एग्जांपल, इफ आई से कि 2 कमोडिटी है विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इज फॉलिंग, दूसरे की डिमांड पे क्या अफेक्ट होगा? कम होगी. दिस विल बी रेफर्ड एज डिक्रीज इन डिमांड. समझ में आया? सो यहां पर क्या होगा? डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ. देयर विल बी अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डाउनवर्ड शिफ्ट. इंक्रीज इन डिमांड देख लेते हैं. इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, व्हाइल प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. प्राइस को कांस्टेंट रख के डिमांड, if it is getting affected because of any other factor, it will be referred as either increase or decrease. Shift of demand curve. Yes, there was, पीछे अपन ने क्या पढ़ा? मोमेंट अलोंग द कर्व. वहां पे एक ही डिमांड कर्व रहता था, यहां पे अलग अलग डिमांड कर्व आ जाएंगे. इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड इंडिकेट्स राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व. फॉर एग्जाम्पल, करंट लेवल ऑफ डिमांड इज डिपिक्टेड बाय D0. इंक्रीज इन डिमांड किधर होगा? D0 से D3 या D0 से D2? D0 से D3. D0 से D3 राइटवर्ड मूवमेंट हो रहा है, वहां पे तुम्हारी डिमांड इंक्रीज हो रही है. योर डिमांड कर्व इज गेटिंग शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट. और डिक्रीज कहां पे होगा? D0 से D2. इजी पार्ट है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताता. रीजन फॉर इंक्रीज, भाई इंक्रीज होता है तो क्यों? एक्सपांशन नहीं बोल रहे, इंक्रीज की बात कर रहे हैं. अच्छा, अगर एक्सपांशन होता ना तो इतने रीजन ही नहीं आते, एक ही रीजन आता. क्या रीजन होता? प्राइस. क्या प्राइस डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज. एक्सपांशन में डिक्रीज इन प्राइस और कॉन्ट्रैक्शन में इंक्रीज इन प्राइस. यहां पे तो वेरियस फैक्टर्स हैं. देखो क्या क्या फैक्टर है. राइज इन इनकम, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, चेंज इन टेस्ट इन फेवर ऑफ दिस कमोडिटी, चेंज इन टेस्ट इन फेवर ऑफ दिस कमोडिटी, यानी कि अब लोगों को ये कमोडिटी ज्यादा पसंद आ रही है. फॉर एग्जांपल, पहले ओला उबर इतना प्रेवलेंट नहीं था मार्केट के अंदर, सडनली लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गया. अब लोग कार वगैरह परचेस नहीं करते. तो मालूम है रिसेंटली महिंद्रा ने 1500 एम्प्लॉय को ले ऑफ किया, निकाल दिया. क्यों निकाल रहे हैं वो? जरा सोचा? नहीं, ऑटोमेशन, वो गाड़ी ऑटोमेशन ये सही बनती, इतने वर्कर्स तो लगते ही थे. देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड. डिमांड क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि अब लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया. अब लोग बोलते हैं यार महीने में एक बार बाहर जाना रहता है, तो काय को कार खरीदने का, जूम कार ले लेंगे 2 दिन के लिए. मालूम है जूम कार का कॉन्सेप्ट? वहां पे आपको कार किराए पर मिल जाती है 1-2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जितने टाइम के लिए चाहिए. तो बोलते हैं जितने टाइम के लिए चाहिए उतने टाइम के लिए लेंगे. अच्छा, लोकल कम्यूट करना है तो ओला उबर है, शेयर है, ओला शेयर वगैरह है. तुम आधा घंटा पहले अपनी जर्नी प्लान कर लो, शांति से. तुम्हारे को ईएमआई का झंझट नहीं, ड्राइवर रखने की जरूरत नहीं, सोते सोते शांति से जा सकते हो. तो धीरे धीरे डिमांड शिफ्ट हो रही है. पहले क्या होता था? सोचो, एक फैमिली को एक कार लगती थी, तो एक बंदे के पीछे एक कार थी. समझो तुम्हारे पापा घर से ऑफिस जाते थे कार से. अब क्या हो गया? दिन में वो एक ही बार ट्रैवल करते थे, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का. अब ओला कैब क्या करता है? 3 पैसेंजर एक साथ बिठाएगा और दिन भर ऑपरेट करेगा. यानी कि जो कार पहले एक पर्सन को सर्व करती थी एक दिन में, आज 20 क्या 100 लोगों को सर्व कर लेते. चलो 100 बहुत ज्यादा, 50 लोगों को सर्व कर रही है. तो कितना क्वांटम इंक्रीज हो गया है सर्विंग का. समझ में आ रहा है? तो सडनली डिमांड गिरते जा रही है. अभी जैसे मैंने सोचा था कि कार ले लूंगा, फिर मैंने सोचा जरूरत ही क्या है कार की, है ना? अब चॉपर लेंगे अपन, पर ये चॉपर झाड़ों में अटक जाएगा. यहाँ पे प्रेस्टीज पॉइंट के झाड़ देखे क्या,
4th 5th फ्लोर से भी ऊपर जा रहा है। हाँ, क्या क्या कर रहा था तू झाड़ पे? कबूतरों को देखता है? Okay. So increase in demand can be because of rise in income, rise in price of substitute, fall in price of complementary, change in taste. In favor को अंडरलाइन करना है। इन फेवर मतलब पॉजिटिव हमारे लिए। इन फेवर, मानसी इन फेवर, अमृता इन फेवर किया है, शाबाश। इंक्रीज इन पॉपुलेशन है तो तुमको मालूम ही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई कि सडनली डिमांड इंक्रीज हो जाती है। समझा? क्या समझा? लगता है किसी ने फीस भर दी, बिजली का बिल भर दिया, पैसे आ गए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू द ग्रुप हु फेवर दिस कमोडिटी। चेक बाउंस हुआ लगता है उसका। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू द ग्रुप हु फेवर दिस कमोडिटी। इसका मतलब क्या है? लेट से ये गरीब लोग हैं, इस तरफ के गरीब लोग अपन, हाँ, ये अमीर लोग, भयंकर अमीर लोग हैं। नेशनल इनकम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारा खर्चा ये लोग करते हैं, लेट से सारा का सारा खर्चा यही करते हैं इकोनॉमी के इधर, पर पैसा नहीं है इनके पास। सडनली ये लोग गरीब होते गए और ये लोग मेहनती बैक बेंचर्स मेहनत कर करके अमीर हो गए। तो अब क्या हो गया? ये डिमांड क्रिएट करने वाले लोगों के पास इनकम आ गई, तो इससे भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब वहां से उठा के यहां चली गई। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू द ग्रुप हु फेवर दिस कमोडिटी। समझा? अब उसके रिवर्स पॉइंट देख लो यहाँ पे, फॉल इन इनकम, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, चेंज इन टेस्ट एंड अगेंस्ट। यहाँ पे वर्ड को अंडरलाइन करना, अगेंस्ट, यानी कि हमारे गुड्स के अगेंस्ट जा रहा है मार्केट। ऐसा होता है कभी कभी, सडनली आईटीसी वगैरह, बाबा आ गए अपने रामदेव बाबा, से करते करते योगा करो, योगा फायदा होगा, तो योगा से फायदा करने का उन्होंने बोला पतंजलि लिया है। अब पतंजलि लाए तो लाए, पर आईटीसी डाबर सबके पीछे पड़ गए। ठीक है, उनकी गाय नहीं है, कुछ और चीजों से दूध लेकर आते हैं, वो गाय का नहीं, वो ऊंट का दूध ला रहे हैं, फिर उनका घी पता नहीं किसी चीज का रहता है, मधुमक्खी से शहद नहीं ला रहे, वो कहीं और से ला रहे हैं, कुछ भी मतलब आलतू फालतू चीज है। तो फिर क्या हो गया? सडनली डाबर और आईटीसी के जो प्रोडक्ट्स थे, कम्युनिटी उसके अगेंस्ट चली गई, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अगेंस्ट चली गई। तो लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस उस कमोडिटी के अगेंस्ट चला गया। अभी बाबा जी लेकर आए पहले नूडल्स नहीं, आटा नूडल्स लाएंगे अपन बोले, तो लोग पहले बोलते मैदा खाओगे पेट में तुम्हारे कुछ जम जाएगा वगैरह वगैरह, 100 प्रॉब्लम्स बोली उन्होंने। और फिर बाद में क्या किया? धीरे से टेस्ट और प्रेफरेंस उस कमोडिटी के अगेंस्ट शिफ्ट करवा दिया। तो वैसे ही है, चेंज इन टेस्ट अगेंस्ट दिस कमोडिटी। डिक्रीज इन पॉपुलेशन इम्पॉसिबल। डिक्रीज इन पॉपुलेशन तभी होगा जब एक कोई न्यूक्लियर वेपन गिरेगा किसी के ऊपर, बाकी कोई चांस लगता है क्या तुमको? पॉपुलेशन कम कैसे होगी? कोई पॉसिबल वे लगता ही क्या? किसी को आइडिया है कि पॉपुलेशन कम कैसे करने की? एग्जिस्टिंग, नए वाला तो तुम लोगों के मतलब पूरे कम्युनिटी के हाथ में है। हाँ, सत्वा बहुत ज्यादा जागरूक है इस चीज को लेकर, अवेयरनेस इज क्रिएटिंग अवेयरनेस। हाँ, तो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन कम करने का कोई सोर्स नहीं है। बुजुर्ग लोगों को दलिए में जहर मिला के तो दोगे नहीं तुम लोग, करना भी नहीं, पाप है वो। तो ये तो इम्पॉसिबल पॉइंट है, डिक्रीज इन पॉपुलेशन। कैसे बोले डिक्रीज इन पॉपुलेशन? कैसे होगी रे? डिक्रीज नहीं होती है। हाँ, अबे वो तो प्रोस्पेक्टिव हो गया है, रेट्रोस्पेक्टिव। पुराने जो पैदा हो गए उनका क्या, तुम पैदा हो गए यहाँ पे, अब अपने को थेनोस जैसा काम तो करते नहीं आएगा। या गुरुजी भी कुछ यही चाहते थे ना, बाबा थेनोस और गुरुजी एक जैसे ही थे पॉपुलेशन कम करने का। क्यों? वो नेशन के बारे में सोच रहे थे। आगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अवे फ्रॉम हु फेवर्स दिस कमोडिटी। अब ये लोग फेवर करते थे मेरी कमोडिटी को, और सारा का सारा पैसा इनका उठ के फिर से अक्षत के पास चला गया। अक्षत और अमीर हो गया, और अक्षत के शौक अलग है, तो वो तो मेरी दी हुई अच्छी कमोडिटी का इस्तेमाल नहीं करता। क्या भाई? कौन भाई? ओके, नाउ द डिस्टिंग्विश बिटवीन, अभी ये पॉइंट देख लेते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोमेंट अलोंग द कर्व एंड शिफ्ट आउट द डिमांड कर्व। बुक बंद करो, तो एक बुक मेरे को दे दो, बंद करो बुक।
अच्छा, अगर प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इज गेटिंग अफेक्टेड, क्या डिमांड कर्व शिफ्ट होगा या मोमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व रहेगा? प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इज गेटिंग अफेक्टेड, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो रहा है प्राइस के अंदर, उसके कारण डिमांड इज गेटिंग अफेक्टेड, वेदर दिस विल बी अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व और मोमेंट अलोंग द कर्व, मोमेंट अलोंग द कर्व. Price of this commodity is falling. Expansion, contraction, increase or decrease? Expansion. Price of the related commodity is falling. Related मतलब substitute goods. Substitute goods की price गिर रही है. Increase in demand. Okay. Price of substitute is falling. Decrease in demand. Decrease in demand. Okay. Upward movement along the same demand curve is called as dash contraction. Or downward movement, sorry, expansion. Rightward shift, leftward shift, decrease in demand. टेबल देखने की जरूरत नहीं है तुमको, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, लगता है कोई अच्छा टीचर पढ़ाता है तुम्हें. बड़े आगाऊ लड़के हैं ये लोग. पूरी क्लास जितना आवाज नहीं करती ना, ये इतने आगे की 3 बेंचेस कर लेती है. अभिषेक अभिजीत, पावर ऑफ मामा. मामा अपने को 12th में कितने थे अकाउंट्स में? 96 ना? 99. शर्म करो, रोज पैर छू के जाया करो उसके. और मामा का आशीर्वाद किसी के लिए बुरा थोड़ी होता है. अब ये बात अलग है, मामा अपने से उम्र में छोटा है. प्रशांत को 100 है, वो तो बाबा जी है ना, उनको तो आ सकते हैं. गुरुजी नहीं. चलो पार्ट सी पे आ जाओ. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या पढ़ा अब तक अपन ने पढ़ा डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड कौन कौन से फैक्टर्स पे बेस्ड है, सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री का इफेक्ट, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड. इसके बाद मोमेंट अलोंग द कर्व, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, सारी चीजें पढ़ ली. नाउ वी वांट टू स्टडी कि भाई चेंज होता है तो कितना होता है. अगर अपन बोल रहे हैं ना प्राइस कम करने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है तो कितना होते हैं. दूसरी कमोडिटी का प्राइस चेंज होने के कारण मेरी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड पर कितना अफेक्ट हो रहा है तो कितना होता है. ये सारी चीजें आप मेजर करना है. तो पार्ट सी के अंदर बेसिकली रहेगा मेजरमेंट. इलास्टिसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग बट द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द फैक्टर ऑन विच द डिमांड इज डिपेंडेंट. यानी कि जिस फैक्टर के ऊपर डिमांड डिपेंडेंट है वो फैक्टर अगर चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना असर पड़ता है, ये पता करना है अपने को. अच्छा, ये क्यों पता करना है, जरा सोचो. कि हमें इतना मालूम है प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम हो जाएगी. जब इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई है तो कितना चेंज हो रहा है ये पता करने की क्या जरूरत है. सही बोल रहा था कोई? प्रोड्यूसर के लिए आगे थोड़ा सा हाँ और बता. सही बोल रहा है. सी दीज बैक बेंचर्स आर कमिंग हेड एंड टेकिंग लीड. बाकी सब लोग शांत बैठे हैं. वेदिका बोलो. नहीं वहां कुछ नहीं है ही नहीं, रीजन ही नहीं है बुक के अंदर. अच्छा, मेरे को नए स्टूडेंट से आंसर चाहिए. नहीं ठीक है, तुम लोग रहने दो. नए वाले से आंसर चाहिए. पहले ओमकार बताएगा, फिर आदित्य बताएगा, फिर मालोजी, फिर प्रज्योत बताएगा, फिर बताएगा. यार तो सब पुराने हैं. फिर जयंती बताएगी, फिर जानवी बताएगी. बस इतने लोगों में से आंसर आ जाना चाहिए. हाँ, पहला कौन था पापी? हाँ तुम बोलो. काय को मेजर करने का है? सोचो. बाकी लोग एक ही को सोचने का टाइम दे रहा हूं, मतलब सब अभी एक साथ ही सोचो. और पार्टी मिली क्या तुमको? करण सर तो बोले थे ना देंगे.
नहीं नहीं, वादा किया था ना, किधर गए रे तुम लोग? वादा किया था तुमको तो। वाह 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 वाह। फिर बाद में बोला भी होगा उन्होंने, फिर बाद में बोलेंगे आदित्य सर एक और दे देंगे तो मैं दूंगा। वो उसने तो अक्षत ने बोला था। हाँ, तूने बोला था कि निकलवा के बताऊंगा सर पार्टी। कौन सा साइन? हाँ वो मैं कर दूंगा कभी भी। हाँ बोलो बोलो। नहीं, ओमकार। प्रेडिक्शन? कौन था नेक्स्ट? मालोजी? नहीं, आदित्य। मालोजी क्या कुछ तो होगा, कुछ तो मन में आ रहा होगा, कुछ गाना चल रहा होगा, उन्होंने वही बताते, जो माइंड में प्रोसेसिंग चल रही है वो बताया करो। हाँ जानवी, तुमसे पहले कोई और थी ऐसा बोल रही? यही थी ना, जयंती थी ना? हाँ हाँ चलो बोलो, कौन था उससे पहले? हाँ प्रज्योत। प्रज्योत मूवी का नाम नहीं बता रहा हमको वैसे। हिंट हिंट तो दे सकता है ना? हिंदी मराठी कौन सी है? मराठी है, देखो मराठी चलेगी देखना, चलेगी। देख तुम, मैं वही बोल रहा हूँ, इसका भाई की सेटिंग हो चुकी है। तू हाँ, दो टिकट, दो टिकट, बाकी क्लास को दे ना दे, इसको दे देना। वो भी बेचारी एमपीएससी करती है, बहुत पढ़ाई करती है। हाँ बोल। आइडिया नहीं इसमें, ये बाकी सब भी क्लूलेस है। हिंट लगा कि भाई मेजर करने का क्या मतलब है, काय को मेजर करने का है? प्राइस चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो जाती है, काय को पढ़ने का अपन नहीं है? नहीं रुक जा तू, नहीं नहीं तू दे देगा आंसर, मेरे को मालूम है। बोलो चलो, उसको नहीं जम रहा। जानवी? नहीं, जयंती पे है। उसने भी वही, तुम तीनों ने, चारों ने एक साथ मिलकर डिस्कशन, वही आंसर दे रही क्या तुम? लड़की जानवी। और कौन बचा था लास्ट? अमृता थी ना? लास्ट कौन था फिर? हाँ ये वाली अमृता के पास वाली लड़की, नाम साक्षी। हाँ साक्षी के बाद श्रुति, वो वाली। श्रुति के बाद वैभवी, फिर प्रियंका। जो ज्यादा हंसता है पहले वही फंसता है। फिर उसके बाद ऋतुजा, बहुत हंस रही है तो ऋतुजा। हाँ तुम भी। हाँ प्रणीता। और लास्ट में अथर्व आया। अथर्व क्लोजर स्टेटमेंट है, भरोसा है मेरे को बता देगा आंसर। मुंह पे भी गिराते हैं बच्चे, जब ज्यादा ही भरोसा करते हैं ना, ये डस लेते हैं अपने को। हाँ बोलो। पास। सोनाक्षी। हाँ चलो अपन ना सब स्किप कर देते हैं, पावर अप। हाँ बोल। प्राइस डिसाइड करने के लिए नहीं है वो। बोल लड़की सोनाक्षी, क्या प्राइस डिसाइड करें? हाँ क्या क्या, सॉरी आगे। प्रोडक्शन से क्या है उसको? मोबाइल लेके क्या दिखा रहा है हमको? है हम सबके पास। हाँ बोल, तू ही बोल। हाँ हाँ बोलो चलो। प्रियंका और तुम साथ में दोनों मिलकर डिस्कस ही करने वाली हो वैसे। आंसर एक ही दे दो, कोई आंसर इसमें से। ऋतुजा बच गई ऐसा लग रहा है तुमको? नहीं, अगला क्वेश्चन तुम ही दोगे आंसर।
नहीं, अथर्व। बोलो। काइंड ऑफ करेक्ट है। अरे भाई, इंसान प्राइस डिटरमाइन क्यों कर रहा है? प्राइस बढ़ा रहा है, कम क्यों कर रहा है? प्राइस कम कर रहा है ताकि उसकी ज्यादा कमोडिटी सेल कर सके वो। तो वो ज्यादा कमोडिटी, ज्यादा प्रॉफिट के इंटेंशन में ज्यादा कमोडिटी सेल करना चाहता है, और ज्यादा कमोडिटी सेल करने के लिए उसने देखा फैक्टर कौन सा अफेक्ट कर सकते हैं उसके हाथ में, तो उसने बोला मैं प्राइस कम करके देखता हूं। पर प्राइस एकदम भी ज्यादा कम कर दिया तो प्रॉफिट मार्जिन पे नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज उसको देखना है, अगर मैं प्राइस 1% से चेंज करता हूं तो क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना फर्क पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं 50% प्राइस गिरा रहा हूं और क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 10% से इंक्रीज हो रही है, तो बोलेगा कोई फायदा ही नहीं है। 50% प्राइस गिराने पर मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी खत्म हो गया, लेकिन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 10% रहा। दूसरी तरफ उसने देखा कमोडिटी का प्राइस अगर 5% से भी गिरा दूं तो क्वांटिटी डिमांडेड 50% इंक्रीज हो जाती है, तो समझता है प्राइस चेंज करना ज्यादा इसेंशियल है। ही वांट टू नो द रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि डिमांड किस तरीके से रिएक्ट करती है मेरे प्राइस चेंज को। अगर मैं 10% प्राइस चेंज करूंगा, कम करूंगा, तो मेरा 10% प्रॉफिट गिर रहा है, लेकिन उसके कारण अगर क्वांटिटी डिमांडेड 20% इंक्रीज हो रहा है तो मेरे को समझ में आ रहा है बेनिफिशियल है, ये सौदा बेनिफिशियल है। एक तरफ प्रॉफिट थोड़ा सा कम करने से क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर उल्टा केस हो 20% प्राइस कम कर रहा है और क्वांटिटी डिमांड से 5% चेंज हो रही है, बोल रहा है मैं अपना प्रॉफिट भी लूज कर रहा हूं, साथ ही साथ क्वांटिटी भी इतने क्वांटम में बढ़ नहीं रही है। सो यू वांट टू नो कि अगर मैं कल करके मेजर लेता हूं तो मेरे प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। सो नॉट टू डिटरमाइन प्रॉफिट, एग्जैक्टली से प्रॉफिट डिटर्मिनेशन के लिए नहीं, उसको रिस्पॉन्स जानना है कि क्या मुझे ये एक्शन लेना चाहिए भी या नहीं। अब पार्ले ने अगर 5 की जगह 4 रुपए का कर दिया, प्राइस उसने कितने परसेंट कम करी, 5 से 4 करने पर 20% प्राइस कम कर दी, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड पे असर नहीं पड़ा। बताओ उसका ये जो सौदा था सही हुआ या नहीं, गलत हो गया। सो उसको देखना है क्या रिस्पॉन्सिवनेस है। समझ में आया? हाँ, आदित्य कुछ बोल रहा था। तो तू एंड रिजल्ट तो हर चीज का प्रॉफिट एंड लॉस ही रहता है, लेकिन उसको देखना था कि क्वांटिटी डिमांडेड उस प्रपोर्शन में चेंज हो रही है या नहीं। दूसरी चीज देख लो, अगर इलास्टिसिटी यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड चेंज ही नहीं हो रही, तो प्राइस कितना भी बढ़ा दे, तो क्या करना चाहिए प्रोड्यूसर ने ऐसे टाइम पे? मैं प्राइस कितना भी चेंज कर दूं, कम कर दूं, ज्यादा कर दूं, समझो माचिस की डब्बी है, प्राइस 1 रुपए आता है, 1 रुपए की जगह 2 रुपए कर दूं, 2 की जगह 50 पैसे कर दूं, तो भी उसमें क्वांटिटी डिमांड में चेंज है। तुम थोड़ी ऐसे ज्यादा बीड़ियां फूकने लगोगे, ज्यादा घर जलाओगे, ऐसा कुछ तो करोगे नहीं तुम लोग। ये वो आमिर खान की तरह ऐसा वो करता था ना, वो करने नहीं बैठोगे। देखा क्या वो मूवी में करता था, बावला कुछ भी करते थे। आजकल पुराने गाने देखो ना, अजीब लगता है। हाँ, तो मैं कहा था, मैं ये था रिस्पॉन्सिवनेस एक बार अपने को पता चल गया कि इट इज इलास्टिक और इट इज इनइलास्टिक, तो फिर अपन प्राइस चेंज कर सकते हैं। और प्राइस चेंज करने का एक ही मोटिव है, अल्टीमेट एम यही है पूरे इकोनॉमिक्स का वेदांत अपना, अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस आइडेंटिफाई करना। समझ में आया? चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to responsiveness of quantity demanded of a good to change in one of the variable on which demand is dependent। क्या बोल रहे हैं ये? क्वांटिटी डिमांडेड पे मान लो जी कितना असर पड़ेगा अगर डिमांड जिन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है उनको अपन चेंज करें तो। डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन इनकम, डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, demand is dependent on price of the related commodity, demand is dependent on availability of substitute। ये सारे फैक्टर्स को अगर मैं चेंज करता हूं 1% से, तो क्वांटिटी डिमांडेड पे कितने परसेंट चेंज आने वाला है ये पता करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता चलता है अगर मैं प्राइस 1% से भी कम करता हूं, 1% से 100 रुपए का है 99 रुपीज कर देता हूं, मेरा सेल डबल हो जाएगा। देयर इज 100% इंक्रीज इन द सेल्स। क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? मुझे कम करना चाहिए। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड तो यही बोलता है प्राइस कम करने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये पता करना है इस यूनिट के अंदर। समझ में? बहुत इजी है, 4 अपने पास फॉर्मूला है, अपने को बस उतना ही पढ़ना है। ओके, विल स्टार्ट।
दूसरी डेफिनेशन इसकी है, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड इज डिपेंडेंट है। फॉर्मूला दे दिया। फॉर्मूला, इलास्टिसिटी कैसे मेजर करते हैं? इलास्टिसिटी मतलब चेंज। ये चेंज कैसे मेजर करते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन इनकम और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो भी है, जिसके ऊपर डिमांड डिपेंडेंट है उसके अंदर का चेंज के कारण डिमांड पे कितना अफेक्ट हो रहा है, कितने परसेंट चेंज हो रहा है, वो आइडेंटिफाई करना है। समझा क्या तुम्हें? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। Income of the consumer is called as income elasticity, denoted by EI. Price elasticity is denoted by EP. Income elasticity is denoted by EI. फॉर्मूला क्या रहेगा EI का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। आई इनकम की बात करें। प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट डिनोटेड बाय EC, क्रॉस इलास्टिसिटी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द मतलब रिलेटेड कमोडिटी, या कॉम्प्लीमेंट्री होगा यहाँ पे। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी डिनोटेड बाय ES। अच्छा, इतने पार्ट में ना एक MCQ बन सकता है, और अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो वो सिर्फ पहले 2 पार्ट पे बनेगा, या मैक्स टू मैक्स 3rd पार्ट पे। ये वाले पार्ट पे कोई न्यूमेरिकल नहीं बना है अब तक। तो तुम्हें 4 टाइप की इलास्टिसिटी याद करनी है। कौन कौन सी है देवराज? एक है प्राइस इलास्टिसिटी, श्रेयस। दूसरी इनकम इलास्टिसिटी डिनोटेड बाय EI। प्राइस इलास्टिसिटी डिनोटेड बाय ऋतुजा EP। प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी को बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी इज डिनोटेड बाय EC। और सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट पे डिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं ES। देख लो एक बार, ये याद करने की कोशिश करो। हो गया? आज ना एक वीडियो देख रहा, तुमको देखकर टिकटॉक की याद आती, पता नहीं क्यों। और टिकटॉक को देखा कि कैरी मिनाटी की याद आती। कि मालूम है कौन है कैरी मिनाटी? हाँ, नया वीडियो डाला उसने टिकटॉक वालों पर। आज नहीं, वो तो डालते रहता है कंटेंट। एवोल्यूशन ऑफ टिकटॉक नया डाला है, मैंने तो अब भी देखा। भयंकर फ्रस्ट्रेटेड बंदा है वो दुनिया से, मतलब उसको इतनी चिड़चिड़ होती है। दिखाता था मैं तुमको, पर उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिट वर्ड यूज करता है, इसलिए यहां नहीं दिखा सकता, तो तुम लोगों को रेफर करता हूं, देख लेना। यहाँ ऐसे नकली खून लगा के रोते हैं, चिल्लाते हैं, लड़के छातियां दिखाते हैं, अपनी हड्डियां दिखती है उसके अंदर। क्या चल रहा है? मतलब वो तुमको मालूम है क्या, पहले एक ऐसे कैलकुलेशन के लिए एक आता था, उसमें ऐसा कुछ तो भी लगा रहता था, क्या बोलते थे? एबेकस। उनकी हड्डियां दिखती हैं यहाँ पे कि उसमें एबेकस खेल सकते हो आप। और इनको प्यार हो रहा है ऐसे लोगों को भी। क्या सच में ऑ है उनके लिए। ये ऑ वैसे लड़कियों के लिए वर्ड बना था, AWW ना, ऑ। ये लड़कियों के लिए बना था, जो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है सडनली। मतलब लड़की होना कोई बुरी बात नहीं है, पर इमोशनल हो जाती थी। आजकल लड़कियां कम यूज करती है, लड़कियां तो माँ बहन की गालियां दे रही हो, लड़के ऑ पर आ गए। ये देखो फिर से ऑ। चले बड़े आगे। प्राइस इलास्टिसिटी, अभी ये तो अपन ने देख लिया ब्रीफली क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। अब अपन जाते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज responsiveness of quantity demanded with respect to change in price of that commodity, keeping other factor constant. Price elasticity is defined as responsiveness of quantity demanded with respect to change in price of that commodity, keeping other factors constant. बाकी सारे factors को constant रख के अगर प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज आ रहा है उसको मेजर करना है, तो वी विल यूज प्राइस इलास्टिसिटी डिनोटेड बाय EP। समझा? फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? 4 फॉर्मूला है वैसे। एक फॉर्मूला तो तुमको मालूम है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी।
The price elasticity of demand measures the responsiveness of quantity demanded of a commodity to change in price, assuming all other factor constant. In other words, it measures as the percentage change in quantity divided by percentage change in price, keeping other factors constant while other things remain equal. Price elasticity of demand, EP. Book बंद कर लो, पलट दो book. EP. Change in quantity. Quantity is denoted by Q and price is denoted by P. And change is denoted by delta. Change is denoted by delta. मालूम है 12th में या कभी तो यूज क्या होगा? Change is delta. Q is quantity. हाँ समझ गया बे, 4 बार yes बोल रहे हो. Change is denoted by delta. Q is the price and P is the price and Q is the quantity. Can you tell me the formula of price elasticity? Change in quantity. अच्छा ये है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? लेट से पिछले साल तेरे को 100 मार्क्स आए थे टोटल 4 सब्जेक्ट मिला के, एक में नहीं. इस साल 150 आए. कैन यू टेल मी द चेंज? कैन यू टेल मी द डेल्टा? डेल्टा इज 50. हाँ. कैन यू टेल मी द परसेंटेज चेंज? 50%. एक उत्तर आया है 50%. श्रेयस बता परसेंटेज चेंज कितना हुआ? तू 100 से 150 पे चला गया है, बता कितने परसेंट चेंज हुआ? छोड़, ये बहुत ज्यादा इजी हो रहा है. एक काम करते हैं, 33.796 से तू 48.341 पे गया है. बताओ परसेंटेज चेंज. पहले तो चेंज बताओ फिर परसेंटेज चेंज बताओ. ओ सर कैलसी निकालना पड़ेगा. डेल्टा बता रहे तू मेरे को, है ना? 14 पॉइंट. सोनाली ये स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए, लास्ट टाइम तुम्हें डाउट था थोड़ा सा, परसेंटेज नहीं चाहिए. दिस इज द चेंज. और परसेंटेज चेंज निकालना है तो कैसे किया? ये तो चेंज है, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट. ठीक है, तो ये कैसे आ जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, द होल डिवाइडेड बाय डेल्टा पी. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. हाँ हाँ 100 में परसेंटेज में लेना है, नहीं तो उसको कोएफिशिएंट की तरह ले सकते हो. प्राइस इलास्टिसिटी 0.1 भी बोल सकते हो, 1 भी बोल सकते हो, 2 भी बोल सकते हो, परसेंट भी बोल सकते हो, एक ही बात है. तेजस समझा? ठीक है, एक न्यूमेरिकल लो छोटा सा. एक कमोडिटी थी जिसकी ओरिजिनल क्वांटिटी Q1 was 158, Q2 became 163. प्राइस, पहले प्राइस था 146 और अभी प्राइस हो गया है 138. कैन यू टेल मी प्राइस इलास्टिसिटी? किसी को यहाँ पे आके सॉल्व करना है इसको? कोई आएगा? चेहरा फेमस करवा दूं तुम्हारा थोड़ा सा. आया कितना? 1.73. एक उत्तर आ रहा है 1.73 क्या टाइम्स. हाँ ठीक है, मतलब ये लड़की 1% भी डिमांड, 1% भी प्राइस चेंज करेगी तो 1.73% चेंज होगा तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड में. ओके, ये मेरे को मालूम नहीं सही है गलत, तो तुम लोग बताओगे बाकी के लोग. जस्सी बता रखा था.
1.7 यही वाला कितना है 1 पॉइंट, वो गलत है, गलत बताया इसने, तू बता इसका कुछ गलत, इसने जो बताया गलत था ये। अक्षय तेरा कितना है 7.1, इतना माइनर डिफरेंस कैसे हो सकता है 1.71, पहली बात तो इतना ज्यादा। .57 बराबर। और ये लड़का 0.58 बोल रहा है, वो भी माइनस बोल रहा है। अरे बाप रे। अब मयूर 0.58, वही पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव बोलता है पॉजिटिव। एक और आंसर है, करेक्ट आंसर और आ रहे हैं 5758, एक ही अपन मान लेते हैं। क्या पॉजिटिव नेगेटिव, तो अपने पास 4 आंसर आए, ए बी सी डी, 1.73, 1.75, 0.58 माइनस 0.58। सी श्रीजय, हाँ माइनस या प्लस, प्लस, तो सब गलत हो गए। माइनस, माइनस डिनोट्स द रिलेशनशिप, ध्यान दो, इट इज माइनस 0.58, माइनस डिनोट्स द इनवर्स रिलेशनशिप, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी इग्नोर दिस माइनस साइन जनरली। पर अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव लेने का, नहीं तो 0.58 वाज आल्सो करेक्ट। समझ में आया तुमको? माइनस डिनोट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और तुम्हारा आंसर माइनस में ही आया होगा, आना चाहिए माइनस में। एनीवेज, हाँ तो तू पहले सही बोला था, पर बाद में क्या को प्रेशर, पीयर प्रेशर। ये एक बार देखो रे भाई लोग और बहनों, देखो ये जमता क्या तुमको, जमता क्या, इतना इजी है। वो अंदर जो कैलकुलेशन करी ना गलत तरीके से थी सोनाली, गलत है ना अंदर की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन गलत है, आंसर सही है, ठीक है, कैलकुलेशन इज रॉन्ग, आंसर इज करेक्ट। तुम कैलकुलेट करो ये वाला रे, ये वाला तुम्हारी बुक में। तुमको 2 दिन छुट्टी है क्या, संडे मंडे? पूछ रहा हूं मत तेरे को, फिर हाँ कैसे बोल दिया। माइनस 0.6 आंसर आ रहा होगा। अब यहां पढ़ो, ये पॉइंट नंबर 3 पढ़ो जरा उसके ऊपर का, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइंस डिनोट्स द इनवर्स रिलेशनशिप, हाउएवर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी जनरली इग्नोर दिस नेगेटिव साइन बिकॉज वी नो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगर आंसर में नेगेटिव दे रखा है तो तुम सिलेक्ट कर ही लेना नेगेटिव, और अगर नेगेटिव उन्होंने साइन नहीं यूज किया तो पॉजिटिव वाला ले लेना। समझ में आया गौरी? कसं काय काय नाही आलं? तुझा आला का आंसर? तुमचा आला का? 0 पॉइंट, सिखाओ इनको, बताओ। और किसका नहीं आया? 5 लोगों का भी नहीं आया होगा, तो फिर मैं सॉल्व करता हूं। 2 तो हो गए, पॉजिटिव नहीं आ सकता था ये, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कैसे आएगा पॉजिटिव? आया? आया तुम्हारा जयंती आया? नहीं आला? विनय नहीं आला? नहीं आया। चलो इधर देखो, 5000 थी क्वांटिटी डिमांडेड,
क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई 3500, गिर गई 3500 पे, प्राइस वाज 100 एंड प्राइस बिकेम 150. कैन यू टेल मी द फॉर्मूला? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, द होल डिवाइडेड बाय डेल्टा पी. कैन यू टेल मी द चेंज इन क्वांटिटी? 1500. ओरिजिनल क्वांटिटी? कैन यू टेल मी द चेंज इन प्राइस? -50 है, मैं 50 लेता हूं. ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस. सॉल्व करो इसको. इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 150 डिवाइडेड बाय 5000 इनटू, उल्टा ले लेना, $3000 डिवाइडेड बाय 5000, 0.6. माइनस में आना चाहिए, माइनस से इग्नोर करे अपन ने. समझा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं. ये मेथड जो था ना, ये इलास्टिसिटी मेजर करने का मेथड था, जिसको बोलते हैं अपन परसेंटेज चेंज और प्रोपोर्शनल मेथड. ये अपन ने पढ़ लिया है. अभी नेक्स्ट अपने को पढ़ना है पॉइंट इलास्टिसिटी के अंदर डेरिवेटिव मेथड. डेरिवेटिव मेथड अपने को बताएंगे साइंस वाले. इस बार सोनाक्षी नहीं, सोनाक्षी को पिछली बार अपन ने तंग किया है. दगड़ू दगड़ू, व्हाट इज डेरिवेटिव? dy अपॉन dx. पर होता क्या है वो? मतलब क्या? डी देवाचा, और कौन है साइंस वाला? देवराज. देवराज, क्या होता है dy बाई डी एक्स? हाँ, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. हाँ, पर वो होता क्या है? साइंस वालों, तुमने 2 साल सिर्फ इतना ही पढ़ा है, वो भी सही नहीं बता पाते. हाँ हाँ, बोलो साइंस वाली. हाँ बोले, बता पा रही ना? बताओ. चलो, तुम्हें कैसे पता चला मैं बोल रहा हूं कौन? तुम बराबर समझ गई कौन. हाँ बताओ. एक तो पहले दिन मैं तुमको बताता हूं, कभी भी बताने का नहीं कि अपन साइंस से आए हैं. ठीक है, बोलो क्या होता है dy बाई डी एक्स? डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ सॉरी, चेंज इन. हाँ, उससे क्या मिल जाता है आपको? हाँ, डेरिवेटिव. और वो होता क्या है डेरिवेटिव? वही dy बाई डी एक्स. उससे मिलता क्या है? डेरिवेटिव. वो क्या होता है dy बाई डी एक्स? मुर्गिया या अंडा है, अंडा या मुर्गिया, वही नाचते रहो तुम. होता क्या है? इस साइड है कोई साइंस वाला? वेदांत, तू साइंस से? नहीं, मैथ्स वाला नहीं चाहिए अपने को, साइंस वाले. एक रीजन है कि साइंस में डेरिवेटिव डाला गया था. देखो, dy बाई डी एक्स बेसिकली क्या है? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x. का मतलब क्या है? x के कारण y के अंदर चेंज कितना आ रहा है, और चेंज इतना छोटा सा है कि अपने को डेरिवेटिव मेथड्स यूज करने पड़ते हैं. चेंज कभी कभी बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं, कई बार बहुत छोटे चेंज रहते हैं. बहुत छोटा सा चेंज अगर रहता है, उसको मेजर करने के लिए डेरिवेटिव्स अपन यूज करते हैं. अ वेरी स्मॉल चेंज. सर वेरी स्मॉल चेंज क्यों मेजर करना है? आप तुम साइंस में देखो, वहां पे इसलिए डेरिवेटिव यूज करते हैं. अगर मान लो केमिकल थोड़ा भी कंपोजिशन चेंज हो गया तो सीधा कुछ नया प्रॉपर्टी निकल के आता है. रॉकेट साइंस देख लो तुम, उसके अंदर माइन्यूट से चेंज के कारण रॉकेट गिर जाते हैं, लॉन्चिंग नहीं हो पाती. तो बहुत माइन्यूट चेंज अपने को मेजर करना है ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, लेट्स से वाई, बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्स. एक्स के चेंज होने के कारण वाई पे जो छोटू सा चेंज होता है, बड़ा चेंज भी हो सकता है, छोटू सा चेंज अगर मेजर करना है तो अपन क्या करते हैं? डेरिवेटिव मेथड यूज करते हैं. किससे बात कर रहा है? कैल्सी कान पे लगाता है तू? ये कौन सा नशा है तुम ही बोलो? ये सस्ता नशा भी नहीं है, ये मोजो का भी नशा नहीं है, ये कुछ और ही है. हाँ, काय का नशा करता है तू सुबह सुबह? ये चाय और कॉफी मिक्स करके पीने का नशा है. मेरे को उस दिन कोई ऑफर करता है, मैं चाय लेकर जा रहा था. कौन था वो? हाँ, तू नहीं था. मैं चाय लेते हुए जा रहा था, मेरे को कोई बोलते सर कॉफी पी लो. मैंने बोला है चाय, नहीं चलो मिक्स करके पीते. कौन था वो उस दिन? वो पीछे में से कोई था.
नहीं, सज्जाद नहीं था। ये नमन झुक तो नीचे एक मिनट, देखने दे पीछे कौन है। वो भी नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, तू था ना। सौरभ हट तो एक मिनट, तेरे पीछे कौन है। रोहन भी नहीं था। कोई तो शाना मेरे को बोलता है नया केमिकल कंपोजिशन ढूंढ। सज्जाद तू था शायद। हाँ कौन अभिषेक, कौन सा वाला एब्सेंट है। तो तू काहे के नशे करता है, कैल्सी से बातें कर रहा है। हेलो जानू, हद हो गई तेरी। ही इज फाइंडिंग हिज एक्स, कोई बात नहीं, चलो आगे। तो ये डेरिवेटिव मेथड भी होता है जब क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ही छोटा चेंज होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। प्राइस में बहुत मतलब प्राइस में चेंज होने के कारण अगर क्वांटिटी डिमांड में बहुत ही कम चेंज आ रहा है, बहुत ही छोटा सा चेंज आ रहा है, तो अपन डेरिवेटिव मेथड यूज करते हैं। अब 5 मेथड है, 5 में से एक मेथड अपन ने पढ़ लिया है, प्रोपोर्शनेट चेंज मेथड वाला है, परसेंटेज चेंज मेथड वाला। दूसरा है डेरिवेटिव मेथड। देखो in point elasticity we measure elasticity at a given point on a demand curve. The concept of point elasticity is used for measuring the price elasticity where the change in the price is infinitesimal, मतलब बहुत ही छोटू, एकदम बारीक सा चेंज होता है ना, तब ये मेजर करने का। और उसके लिए फॉर्मूला साइंस वालों से हमने लिया है। पॉइंट इलास्टिसिटी मेक्स यूज ऑफ डेरिवेटिव रादर देन फाइनाइट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, डी क्यू पी डिवाइडेड बाई डी पी क्यू। नहीं आता अपने को ऐसे ही यूज करने का, वैसे आया ही नहीं आज तक, सदियों से ये क्वेश्चन आया नहीं है, इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पूछेंगे कब यूज करते हैं, तो बोलने का व्हेन द चेंज इज वेरी स्मॉल माइन्यूट सा चेंज है। ठीक है, फिर इसका बड़ा भाई आया ग्राफिकल मेथड। ये भारी मेथड है। ये क्या बोलता है, अपन यूज करेंगे मेथड जब चेंज प्रोपोर्शनेटली लार्जर रहेगा। इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस है। अगर ये वाला मेथड यूज करना है ना, तो तुम्हारा डिमांड कर्व, सुनना, तुम्हारा डिमांड कर्व होना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन टचिंग बोथ द एक्सिस। योर डिमांड कर्व शुड बी अ स्ट्रेट लाइन टचिंग बोथ द एक्सिस, तभी ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। 5 मेथड है, 5 में से पहला हमने परसेंटेज चेंज मेथड देखा, दूसरा मेथड डेरिवेटिव मेथड था, पॉइंट इलास्टिसिटी के अंदर डेरिवेटिव मेथड, तीसरा मेथड पॉइंट इलास्टिसिटी के अंदर ही ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड यूज करने गए तब अपने को एक अजम्पशन लेकर चलना है, या एक कंडीशन उसकी ऐसी है, द डिमांड कर्व शुड बी अ स्ट्रेट लाइन टचिंग बोथ द एक्सिस, नॉट कटिंग बट टचिंग, वही टेंड हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी बाय ग्राफिकल मेथड इज गिवन बाय लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ठीक है, अब देखो, लेट्स से द पॉइंट इज हियर। ये एल पॉइंट दिख रहा है तुमको, एल पॉइंट दिख रहा है, ओके। सो फॉर्मूला के हिसाब से इट विल बी लोअर सेगमेंट दिस डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट दिस पार्ट, लोअर सेगमेंट एल टी डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट टी एल। वो छोटू टी और एल, उसको छोटी टी को कुछ और कर दो तो नाम के कर दो, के कर दो, के जहां भी छोटा टी दिखेगा उसको के कर देना। So the formula will be LT divided by LK. LT divided by LK समझ में आया? Tell me whether this fraction will be greater than 1 or less than 1. क्या रहेगा? या equal to 1 या 0, क्या रहेगा? Less than 1, less than 1 कैसे? क्योंकि सर न्यूमरेटर में छोटा पार्ट आ रहा है और डिनोमिनेटर में a bigger part is coming. So smaller number divided by greater number will be less than 1. समझा क्या? So here the elasticity will be less than 1. सर elasticity less than 1 का मतलब क्या होता है? प्राइस में ज्यादा चेंज करो लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज नहीं होगा, ये होता है लेस देन 1 का मतलब। 1 का मतलब क्या होता है सर? 1 का मतलब है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। ग्रेटर देन 1 में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में अगर प्राइस 1% से चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड 1% से ज्यादा परसेंटेज से चेंज होगी। देयर विल बी अ प्रोपोर्शनेटली लार्जर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड because of change in price if elasticity is greater than 1. If elasticity is equal to 1, then the proportionate change in quantity demanded is equals to proportionate change in price. If it is less than 1, proportionate change in quantity demanded will be less than proportionate change in price. If it is 0, 1, 0 बोल रहा मैंने, no change,
नो चेंज, यानी कि इन इलास्टिक, और इनफाइनाइट रहा तो हाँ, a very minute change will bring very large change in the quantity demanded. अच्छा, मुझे फॉर्मूले के हिसाब से बताओ इनफाइनाइट आंसर कब आएगा? जब 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 क्या? बुक में देख के बताओ और प्रूव करके बताओ। जो भी आंसर देगा मैं वो प्रूफ के साथ देगा, वहां पे लिखा हुआ जरूर है, इन्होंने प्रूफ चाहिए। आंचल नहीं, रहने दो, आंचल से बहुत क्वेश्चन हो गए। तेजस, तेजस इनफाइनाइट कब हो सकता है? प्राइस कांस्टेंट रहती है और डिमांड, प्राइस को तो चेंज करना ही है। अपर सेगमेंट डिवाइडेड बाय लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट हो रहा है, तो अपर सेगमेंट जीरो हो गया। अरे भाई फॉर्मूले में अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट है। समझ में आ रहा है तुमको? और नीचे प्राइस जीरो होने का मतलब क्या है? लोअर सेगमेंट जीरो हो रहा है तुम्हारा, ओके। इसका इंप्लीकेशन क्या है? इनफाइनाइट। इसका मतलब है हल्का सा भी चेंज करोगे देयर विल बी इनफाइनाइट चेंज। प्राइस एक पैसा भी ऊपर नीचे कर दोगे, अगर एक पैसा भी ऊपर बढ़ा दिया इनफाइनाइट फॉल इन डिमांड, और एक पैसा भी कम कर दिया इनफाइनाइट इंक्रीज इन डिमांड। मैनेज ही नहीं कर पाओगे, इतनी डिमांड हो जाएगी। अच्छा, आंसर जीरो कब आएगा? व्हेन न्यूमरेटर विल बी जीरो। न्यूमरेटर जीरो कब आ सकता है? जब क्वांटिटी डिमांडेड, यानी फॉर्मूले के हिसाब से लोअर सेगमेंट जीरो हो जाएगा तुम्हारा। लोअर सेगमेंट कब जीरो होगा? जब डिमांड कर्व टच करेगा तुम्हारी एक्स एक्सिस को, यानी कि क्वांटिटी एक्सिस को। दोनों तरीके से बताते आओ, मेरे को क्या मीनिंग है उसका, इनफाइनाइट, यूनिट, ये सारी चीजें भी बताओ, और फॉर्मूले के हिसाब से कब होगा ये बताओ। अच्छा, यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस, इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस परसेंटेज के टर्म्स में। फॉर्मूला वाइज कैसे होगा? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट करेंगे और आंसर आएगा 1, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर यानी कि लोअर सेगमेंट, व्हेन लोअर सेगमेंट इज ग्रेटर देन अपर सेगमेंट, आंसर आएगा मोर देन 1। अच्छा, इसका मतलब क्या है? A change in price will bring proportionately larger change in quantity demanded. Less than 1 कब होगा? When lower segment is smaller than upper segment. हाँ, इसका मतलब क्या होगा? Less than 1 का मतलब क्या होगा? Change in price will bring a proportionately smaller change in quantity demanded. इतना कोई डेप्थ में पूछता नहीं है तुमसे सिर्फ पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल्स दे दिए जाएंगे और बोलेंगे आंसर निकालो, ठीक है। वापस से अपन रीड करेंगे इसको। दिस मेथड इज एप्लीकेबल, देखना अंडरलाइन करो, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व टचिंग बोथ द एक्सिस। ये कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। अच्छा, ये एक एमसीक्यू में पूछा गया कि विच मेथड विल बी यूजफुल व्हेन द डिमांड कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट टचेस बोथ द एक्सिस। तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए ग्राफिकल मेथड, और पॉइंट इलास्टिसिटी के अंदर ग्राफिकल मेथड। समझा क्या सोनाक्षी? समझा? Under graphical method, elasticity is calculated using formula EP is equals to lower segment divided by upper segment. Sir, EP का तो एक और फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाँ, तो क्या होगा? 5 मेथड दिए ना उन्होंने, वही तो बात बोल रहे हैं वो। It is to be noted that elasticity is different at different point on the same demand curve, since the length of upper and lower segment will differ at point on the demand curve. ये तो ठीक है, irrelevant point है। Next देखो, point है KT divided by KK, KT divided by KK, छोटे t को मैंने K assume किया है, KT divided by KK। KT देखो जरा डायग्राम में, पूरा का पूरा डिमांड कर्व आ गया, डिवाइडेड बाय KK यानी कि 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, तो देयर विल बी अ इनफाइनाइट चेंज, प्राइस इलास्टिसिटी विल बी इनफाइनाइट। निकिता समझ रहा है? वैष्णवी समझ रहा है? दूसरा ST डिवाइडेड बाय KS, ST
डिवाइडेड बाय के एस, ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा? एसपी इज अ लोअर सेगमेंट विच इज ग्रेटर देन एसके, ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 का मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेटली डैश चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, लार्जर या स्मॉलर? लार्जर, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है ना सर, तो लार्जर आना ही है। अच्छा, केटी डिवाइडेड बाय आरटी, केटी आरटी इक्वल है दोनों, आंसर विल बी 1, दिस विल बी कॉल्ड एज यूनिट इलास्टिक। अच्छा, यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल ब्रिंग डैश चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इक्वल चेंज, यूनिट इलास्टिक। एल टी डिवाइडेड बाय एल के, एल टी डिवाइडेड बाय एल के, तो स्मॉलर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट इज स्मॉलर, दिस इज द लोअर सेगमेंट, दिख नहीं रहा, हाँ ये लोअर सेगमेंट इज स्मॉलर देन दिस अपर सेगमेंट, पूरा अपर सेगमेंट। छोड़ो, समझ गए क्या? ये तुम, हाँ अभी भी नहीं जान रहा, छोड़ो। ये के एल तुमको पॉइंट दिख रहे क्या? के एल इज द अपर सेगमेंट, सो अपर सेगमेंट इज ग्रेटर देन लोअर सेगमेंट, योर आंसर विल बी लेस देन 1। इसका मीनिंग क्या है? जस्ट सी मीनिंग, the change in price will bring, answer elasticity is less than 1, change in price will bring proportionately dash change in quantity demanded, less than 1 है, स्मॉलर चेंज, ठीक है। और लास्ट वाला देखो, टीटी डिवाइडेड बाय केटी, टीटी डिवाइडेड बाय केटी, तो अपर साइड है 0 और लोअर साइड कुछ भी नंबर आने दो, आंसर क्या आएगा? 0 इन इलास्टिक। परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, समझा क्या? ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ इसमें, अब तक के पार्ट में कोई प्रॉब्लम है? कल ये चैप्टर हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। एक ही अपने को समझना है, उसके बाद तो सारे सेम है, रेप्लिका हैं इसके। चलो टाटा, बाय बाय, बाय बाय बोलो, बाय सर, बाय बाय बाय।